गुड मॉर्निंग वंस अगेन गाइस। आज हम एक नए थेरीज के बारे में बात कर रहे हैं एंड द थेरी इज बेसिकली अ डार्विनिज्म थेरी ऑफ अ नेचुरल सिलेक्शन. Okay, so who was Darwin? But just take the look of that who was Darwin and what are the types of theory he has put forward. Okay, kind of theory he has put forward. Okay, so he was actually born in 12th Feb 1809 in England. Okay, and he actually traveled in a ship known as HMS Beagle. He started his journey at 27 December 1831, and from here, England, he has actually traveled to South America, South Africa, Australia, and Galapagos Island. Okay, and while traveling, he has found certain very important observation on those particular places like South America, South Africa, Australia, especially about the Galapagos Island. Okay, now whatever the striking observation he has done, we will found it later that what he has done about this. Okay, he was actually influenced by two main books. Okay, the first book was a principle of population, which was given by Malthus, and the second book was Principles of Geology. Okay, which was given by Charles Lyell. Now, whatever the theory which is been put forward by Darwin, Mr. Charles Darwin, the same type of work was also performed by Alfred Wallace. Okay, Alfred Wallace. Okay, he has actually worked on Malay archipelago. Okay, as a concept, and send a chart to the Darwin. Okay, and then whatever the information Alfred Wallace has sent to the Darwin in the form of a chart, Darwin has put forward or designed a book by collecting such information, and the name of the book was The Origin of a Species. Okay, this book was actually published in 1859, and in this book he has given many different types of concept he has actually studied when he traveled to such kind of places. And altogether Alfred Wallace, whatever the observation given by Alfred Wallace was also introduced in this book known as Origin of Species. So we will one by one try to find out what was the basic concept of Darwinism. We will try to understand basic concept of Darwinism. Okay, we'll find out basic concept of Darwinism. Okay, now starting from the basic concept, I will go to the first, that what he was actually looking for. Okay, what was the basic concept of Darwinism? Okay, now he has given two key concepts. There were two key concepts given by Charles Darwin. Okay, branching descent. One was branching descent, and the second was a natural selection. The first was the branching descent, and the second was the natural selection. These were the two key concepts which is given by Darwin. Okay, now whatever the theory of evolution provided by the Darwin was purely based on natural selection. Okay, and some observation basically were factual, but some observation were so important and so real, or they having much more important than other observations. Okay, simple. So we'll talk about all those observations, what were the concept given. Okay, so one by one I will talk about those concepts. Now the first concept he has given was overproduction.
The first concept he has given was overproduction. Okay, now what he had saying this, whatever all the organisms have capability to produce enormous number of offspring. The first point he has given about is are capable to produce enough number of offspring. Enough number of offspring can be produced. Okay, I mean all the organism can produce enough number of springs. Okay, simple. Or we can say that they multiply in a geometric ratio. Hence, अगर हम theoretically देखने जाए तो जो साइज होती है या फिर नंबर होता है ऑफस्प्रिंग्स का, वो कैसे ग्रो होगा? एक्सपोनेंशियली वो नंबर जो होता है ऑर्गेनिज्म का वो ग्रो होते जाएगा. ओके, मतलब ये हुआ कि अगर हर कोई रिप्रोड्यूस करता है मैक्सिमली, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? If every individual reproduce, अगर कोई इंडिविजुअल मैक्सिमली रिप्रोड्यूस होता है तो ओके, तब उसको बोलेंगे अपन एक्सपोनेंशियली वो रिप्रोड्यूस कर रहा है. एक्सपोनेंशियली वो क्या कर रहा है? रिप्रोड्यूस कर रहा है. तो मतलब ये था कि हर ऑर्गेनिज्म कैपेबल टू रिप्रोडक्शन, मतलब हर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है और वो इनफ नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बनाता है. और ये एक्सपोनेंशियल प्रोसेस होती है अगर हर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स. ओके, बट फैक्ट ये था कि पॉपुलेशन साइज जो था was लिमिटेड. मतलब पॉपुलेशन साइज इतना नहीं बड़ा था कि हम ये कह सकें कि हर ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छी तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहा है. तो पहला कंसेप्ट जो था वो ओवर प्रोडक्शन था. ठीक है, नाउ सेकंड कंसेप्ट जो उन्होंने बताया दैट वाज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. ओके, अब ये था, बात ये थी कि नेचुरल रिसोर्सेज जो थे वो कैसे थे? लिमिटेड थे. नेचुरल रिसोर्सेज कैसे थे? लिमिटेड थे या फिर कम थे. एंड जो पॉपुलेशन था वो स्टेबल था साइज में. And the population was stable in size. साइज में वो पॉपुलेशन स्टेबल था. ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूँ कि एकदम स्टेबल नहीं था, जैसे सीज़न आया तो उसमें पर्टिकुलर टाइप के फ्लक्चुएशन आते थे. मतलब ये हुआ था कि रिसोर्स के लिए कंपटीशन होने के कारण क्या होता था, कुछ ऑर्गेनिज्म उस कंपटीशन में मारे जाते थे. तो शायद पॉपुलेशन कम भी होता होगा, ज़्यादा भी होता होगा, डिपेंड करता है. ओके, तो मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि दैट देयर वाज अ रिसोर्सेज के लिए क्या था? कंपटीशन था. रिसोर्सेज के लिए क्या था? कंपटीशन था. ओके, तो इसके कारण क्या हुआ? जो स्ट्रॉन्गेस्ट था वही सरवाइव कर गया. तो मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म जो थे वो सरवाइव कर गए और कुछ ऑर्गेनिज्म जो थे वो पेरिश हो गए. ओके, तो कुछ ऑर्गेनिज्म फ्लरिश नहीं हो पाए ये बोल सकते हैं, या फिर पेरिश हो गए, और कुछ जो थे वो क्या हो गए? सरवाइव हो गए थे. ठीक है, इसको कहा उन्होंने स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस. दिस हैज बीन कॉल्ड एज अ स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस. देन ये जो स्ट्रगल था वो अलग अलग टाइप का था. नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड थे, पॉपुलेशन स्टेबल थी, तो कंपटीशन हो गई.
कंपटीशन में कुछ सर्वाइव कर गए, कुछ पेरिश हो गए, कुछ फ्लरिश हो गए। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट था वो सर्वाइव हो गया और जो वीकेस्ट था वो पेरिश हो गया। तो स्ट्रगल जो था वो अलग अलग टाइप का था। तो अलग अलग टाइप के स्ट्रगल को समझते हैं, अलग अलग टाइप के स्ट्रगल को समझते हैं। तो एक जो था उसको कहा गया था इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, ओके। अगर कंपटीशन इंडिविजुअल की कुछ सेम स्पीशीज में होती है, ओके, सेम स्पीशीज के बीच में अगर कंपटीशन होती है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, ओके। एंड कंपटीशन जो होती है वो सेम स्पीशीज में तो होती है, लेकिन किस चीज़ के लिए होती है। एक तो हो सकती है कंपटीशन हो सकती है कि फूड के लिए हो, या फिर हो सकता है कि वो शेल्टर के लिए हो, इवन ये हो सकता है कि कंपटीशन ब्रीडिंग के लिए भी हो, ओके। तो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल था, ओके। और ये जो स्ट्रगल था उसको एक्यूट टाइप ऑफ स्ट्रगल कह सकते थे, ठीक है। और एक दूसरा था, देयर वाज वन मोर, जिसको कहा गया इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। इसको क्या कहा गया, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। अब जो इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल था, ओके, व्हाट वाज द इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल एक्चुअली, उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा स्ट्रगल ये भी इंडिविजुअल के बीच में था, लेकिन स्पीशीज कैसी थी, डिफरेंट थी। दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में था, इसलिए इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल कहा गया था, ओके। और ये जो स्ट्रगल था मेनली दो चीज़ों के लिए हुआ था, फूड एंड शेल्टर। फूड एंड शेल्टर, रहने की जगह और खाने के रिसोर्सेज, दोनों के लिए ये स्ट्रगल था, ओके। और ये जो था मोस्ट पोटेंट टाइप ऑफ, मतलब ये जो स्ट्रगल जो हुआ था ये एक पोटेंट फोर्स फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन था। इट इज़ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था, पोटेंट था, ओके। और जो तीसरा जो था वो बहुत अलग टाइप का स्ट्रगल था, इसको कहेंगे हम अब देखो, एनिमल्स को एक दूसरे से तो लड़ना ही था फूड एंड शेल्टर के लिए, बट उनको एनवायरनमेंट से भी उतना ही मुकाबला करना था, ओके। तो ये किसके बीच में था मुकाबला, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, किसके बीच में था, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, ओके। अब इसमें क्या होते थे, ऑर्गेनिज्म को कोल्ड, हॉट एनवायरनमेंट, रेन ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता। इवन बहुत बार ड्रॉट आ जाता था, ओके, या फिर फ्लूड आता था। ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशन का जब सामना करते थे तो उसमें कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म बच गए थे और कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म पेरिश हो गए थे। उसके कारण भी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में अलग अलग ऑर्गेनिज्म का आपको उदय दिखता हुआ नजर आया। ये था एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा जो था दैट वाज वेरिएशन एंड हेरिडिटी। वेरिएशन एंड हेरिडिटी, वेरिएशन एंड हेरिडिटी। वेरिएशन एंड हेरिडिटी, ओके। अब आपको पता है कि पॉपुलेशन में रहने वाले जो मेंबर्स होते हैं उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक है
वो थोड़े बहुत अलग होते हैं, ओके। और उसके कारण वो एक पर्टिकुलर टाइप का वेरिएशन अपने अंदर जमा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, मेंबर ऑफ पॉपुलेशन जो थे, है ना, उनमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के जो कैरेक्टर्स थे वो वैरी करते थे, वैरी इन सम, कुछ पर्टिकुलर टाइप के जो कैरेक्टरिस्टिक थे वो वैरी करते थे, ठीक है। बट ठीक डेफिनेटली वो वैरी तो करते थे, सम कैरेक्टर्स उनमें वैरी तो करते थे, बट ऐसा था कि जो ये कैरेक्टरिस्टिक थे वे लोग सिमिलर, बहुत बार ऐसा लगता था कि कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है, लेकिन एक्चुअली उसमें थोड़ा बहुत क्या था, वेरिएशन था, ओके। तो उसके कारण क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन था उन्होंने एक वेरिएशन को बिल्ड किया, इट हैज़ डेवलप और बिल्ट अ वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक थे उनमें उन्होंने कुछ वेरिएशन लाया, भले ही वो थोड़ा नज़र नहीं आता था क्योंकि सभी वेरिएशन सेम लगते थे, लेकिन कुछ ऐसे जेन्युइन वेरिएशन जो थे उसके कारण नए वेरिएशन आए उनके कैरेक्टरिस्टिक में, ओके। अब इसके कारण क्या हुआ, ये जो नए कैरेक्टरिस्टिक थे इसके कारण सम ऑर्गेनिज्म ड्यू टू न्यू कैरेक्टरिस्टिक, ये नए कैरेक्टरिस्टिक जो थे, है ना, ये इसके कारण क्या हुआ, कुछ ऑर्गेनिज्म इसको अडेप्ट कर पाए, है ना। तो नए कैरेक्टर के कारण कुछ ऑर्गेनिज्म अच्छे से खुद को ढाल पाए उस कंडीशन में, ओके। और नेचुरल कंडीशन में वो अच्छे से ग्रो होने लगे, नेचुरल कंडीशन में वो अच्छे से ग्रो होने लगे, मतलब जैसे भी नेचुरल कंडीशन की बात आई तो क्या आएगा उसमें, क्लाइमेट आ गया, फूड आ गया, या फिर फिजिकल फैक्टर्स जो है टेम्परेचर वगैरह ये आ गए, उसके अंदर ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म थे जो अच्छे से सरवाइव कर रहे थे, ओके। तो जो पॉपुलेशन में वेरिएशन आया और उन पॉपुलेशन में जो वेरिएशन आया उसके कारण एक नया कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हुआ, और ये कैरेक्टरिस्टिक अच्छा कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छा था जिसके कारण वो सर्वाइव कर पाए और इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स के प्रेजेंस में खुद को अच्छी तरीके से ढाल पाए, ओके। और कुछ दिनों के बाद यही कैरेक्टर, जो नए कैरेक्टर उन्होंने डेवलप्ड कर लिए थे, ओके, नेचुरल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए, उनको बाद में क्या बोला गया, आर एडेप्टिव वेरिएशन और यूजफुल वेरिएशन, हम बोल सकते हैं यूजफुल वेरिएशन। और जो कैरेक्टरिस्टिक एडेप्ट नहीं कर पाए उनको अपन ने क्या कहा, हार्मफुल वेरिएशन, दोस्त, ओके। तो जो कैरेक्टरिस्टिक एडेप्ट कर लिए उनको कहा यूजफुल वेरिएशन और एडेप्टिव वेरिएशन, एंड दोज कैरेक्टरिस्टिक which not adapt are harmful variation, ओके। तो इसके कारण बहुत सारी चीज़ें जो थी वो हल होने लगी, ओके। तो ये था वेरिएशन एंड हेरिडिटी, ओके। देन we'll having one more, there are many different characteristics we have, okay. We'll talk about those characteristics in next lecture. Thank you.